Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC from Part 1, Chapter number 2. Correspondence related to government departments, public relation and the local government. So today we are going to start up with a new chapter. So today we are here to see the part 1 of the chapter number 2. So before starting the new chapter, let us have a short summarization of the topic that what we are going to see in this chapter. You all know that on the part 1, chapter number 1, banking correspondence, we saw that in which manner and in which format, in which language we have to correspond, means to have the letter writing portion with that particular department. In the same manner, in this chapter we are going to see when we are writing a letter to some government department or public service department or local government department, then how we have to write a particular letter. What is the format and in which way we can write this, particularly some theoretical portion and the pattern of writing the letter, which means the format of that correspondence is being taught to us in this particular chapter. So students, without wasting the time, let us move on with the line-to-line explanation of the chapter from the textbook in the further video. So students, let us move on with the today's new chapter, chapter number 2, correspondence with government department, public service and local organization. So before starting the chapter, as I said, let us see what we will learn in this chapter. First of all, we are going to see the introduction. Then we are going to see the correspondence with government department. In that we are going to see few examples of the letter writing. Then on the second portion, we are going to see the correspondence related to public utility services. Even that also we are going to cover up few theory and the example of the portion in which manner or in which format we are going to write a letter. Then we are going to see the correspondence with local organization. So the illustration of the correspondence, in which manner the local bodies are being corresponded or even the correspondence by an individual can be seen to the local organization. So in this manner we are going to see these three portions, format of doing the correspondence in a very proper manner. So let us move on with the introduction in a very detailed manner. So as usual, I am going to read it out, listen it out carefully. Business houses frequently need to correspond with government departments, public utility services and local institution. Such correspondence, the letter should be addressed to the appropriate authority in the respective department. And as per the procedure of concerned department, to get prompt services and facilities, the approach of the letter should be as per the rules and regulations of the department. The concept for which the letter is to be written should be clear. For the purpose of study, the types of correspondence is divided into 3 categories. Correspondence with the government department. Number 2, correspondence related to the public utility services. And number 3, correspondence with the local authority or the local institution. So कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि बिजनेस हाउसेज यानी जो बिजनेस फर्म है उसे फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ करस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग का एक कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन का रखना पड़ता है. ऐसे करस्पॉन्डेंस किसके थ्रू किया जाता है? तो लेटर के थ्रू एड्रेस किया जाता है. इसीलिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ किस प्रोसीजर से उस डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस रखना चाहिए, इसे कहीं ना कहीं इसका इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर के थ्रू दिया जाता है. प्रॉम्प्ट सर्विसेज और फैसिलिटी हमें मिल पाए उसके लिए किस टाइप का लेटर का अप्रोच होना चाहिए और कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखा जाता है, उसके रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ विच लेटर, कौन से लेटर को किस तरीके से लिखना चाहिए, उसको क्लियरली इस लेसन में हमें समझाना जा रहा है. तो इस पर्पज से किस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. 3 पार्ट में कौन से कैटेगरी? तो फर्स्ट कैटेगरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. हम जब पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेटर लिखते हैं तो वो लेटर को कैसा होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए.
और कैसा उसका मैसेज डिलीवर होना चाहिए, फर्स्ट पोर्शन उसमें देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी, पर्टिकुलर एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के साथ कैसे हमें करस्पॉन्डेंस करना चाहिए। थर्ड एक लोकल इंस्टीट्यूशन, लोकली जो इंस्टीट्यूशन काम करता है उसके साथ कैसे करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। वैसे 3 कैटेगरी में हमें करस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग का बिहाफ किस तरीके से करना चाहिए वो समझाया जा रहा है। सो फर्स्ट टॉपिक आज हम करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस हैव दैट पोर्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Common people and business firms have to correspond with government departments frequently for various issues. In some of the government department, application is to be made online, where in the other department, a prescribed form is to be filled in and submitted to the concerned department along with the required document. Normally, business firms needs to correspond with the following government department for different matters such as Post and Telegraph Department, Telephone Department, Railway Parcel Department, Custom and Export Import Department, Sales Tax and Income Tax Department. जनरली कॉमन पीपल यानी हम जैसे इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं और बिजनेस फर्म की हमें बात करते हैं तो इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म दोनों को ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास फ्रिक्वेंटली यानी बार बार कुछ ना कुछ वेरियस इश्यूज के साथ वेरियस इशू के वजह से करस्पॉन्ड करना पड़ता है। बट कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन हम एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस रीज़न की वजह से हमारा इशू सॉल्व अप हो सकता है। बट आज भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे हमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जैसे बैंक में एक फॉर्म मिलता है उस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया जाता है, उसे हम फुलफिल करना पड़ता है और उसे सबमिट करवाना पड़ता है और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करवाना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम एक बिजनेस फर्म की बात करते तो उन्हें पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट मैटर के लिए कहीं ना कहीं बात करना पड़ता है। फर्स्ट है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जैसे पोस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है उनके साथ बिजनेस फर्म को बार बार कम्युनिकेट यानी करस्पॉन्ड करना पड़ता है। सेकेंड है टेलीफोन डिपार्टमेंट, थर्ड रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट, फोर्थ है कस्टम एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट, फिफ्थ है सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एज ए बिजनेसमैन आपको पता है आपका पोस्टल सर्विसेज ठीक से हो और अगर उसमें कोई इशू आया तो आप एज ए कंप्लेंट और एज ए रिक्वेस्ट आप लेटर लिख सकते हो। टेलीफोन डिपार्टमेंट में अगर आपको टेलीफोन की जो नेटवर्क सर्विस ठीक से ना मिल पा रहा हो या आपको बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उस पोर्शन की वजह से आपको कनेक्ट करना पड़ता होगा। और रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट, आपको कोई पार्सल आया और आपको नहीं मिला या आपको कोई पार्सल आने वाला हो तो उसके रिलेटेड आप उनके साथ करस्पॉन्डेंस कर सकते हो। कस्टम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि आपको पता है अगर आप कस्टम की कोई रिलेटेड बिजनेस करते हो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड आप उनके साथ कोई ऑन द बिहाफ ऑफ दैट प्रोसीजर के बिहाफ में आप कुछ उनसे करस्पॉन्डेंस कर सकते हो। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको करस्पॉन्ड एज अ बिजनेसमैन बार बार रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं लीगल मैंडेटरी पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। सो ये 5 डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं हम एज अ बिजनेसमैन हमें करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है। तो किस तरीके का करस्पॉन्डेंस हमें रखना है और कैसे हम उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए। सो 2.2.2.1 यानी एग्जांपल ऑफ करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लेट अस सी दैट एग्जांपल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। First one, draft a letter of complaint to the Post and Parcel Department for irregular receipt of post and parcel to the institution address. सो कहीं ना कहीं आपका एक कंप्लेंट है, जैसे मैंने बोला या तो कंप्लेंट या तो रिक्वेस्ट हो सकता है। तो आपका कंप्लेंट है आपका जो भी पोस्ट या पार्सल, ठीक है, दोनों जो पोस्ट और पार्सल डिपार्टमेंट से आपको जो भी पोस्ट एंड पार्सल आते हैं वो आपको रेगुलर पोर्शन में नहीं आते, इरेगुलर रिसिप्ट उसका आपके पास देखा जाता है। इसीलिए आप उनको लिखते हो कि आपको टाइम टू टाइम आपका पोस्ट और पार्सल डिलीवर होना चाहिए क्योंकि उसके रिलेटेड आपको फ्यूचर में कुछ उसके रिलेटेड काम होगा, ऐसा हम लिख सकते हो। तो यहाँ ये बिजनेसमैन क्या लिखता है, लेट अस सी दैट। सबसे पहले एज यूजुअल हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमारा कंपनी के नेम हमको इन बिटवीन लिखना पड़ेगा, जैसे भगवती ट्रेडर। उसके बाद एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड हमें एड्रेस देना है, 102 अहबूबा क्या चैम्बर्स, मोटा बाजार, गोधरा 389001, 18 अगस्त 2017। और राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, तो राइट हैंड साइड हमें जो है मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल नंबर लिखना है। सो इन दिस सेंस हमने ये लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन कवर अप कर लिया। वो लिखने के बाद एक लाइन हमें छोड़ना है
और डेट डालना है 18 अगस्त 2017। सो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस आई एम गोइंग टू रीड आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। 102 महबूब चैम्बर्स, मोटा बाजार, गोधरा 389001। सो यहाँ पे भगवती ट्रेडर्स गोधरा से बिलोंग करता है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ना है, फिर हमें पोस्ट मास्टर को एड्रेस करना है, यानी जिसे हम भेज रहे हैं। द पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार, गोधरा 389002। तो इवन हम गोधरा के जो पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस को हम एक लेटर लिख रहे हैं। अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन। फिर सब्जेक्ट, कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एंड पार्सल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो। बट आज कुछ मैं नया करने वाली हूँ, आज मैं प्रश यूज करके आप लोगों को ये पोर्शन अच्छे से समझाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अच्छे बच्चों का ये मिस्टेक देखा गया। सो सबसे पहले आपको इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद नीचे का क्लोजिंग नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का और वर्टिकल लाइन, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाना है। फिर इन बिटवीन हमें भगवती ट्रेडर्स का नाम लिखना है। फिर देखो एक लाइन बीच में छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक लाइन बीच में छोड़ सकते हो। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है, और इवन यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद अगेन यू कैन सी दैट कि एक लाइन छोड़ा गया है। एक लाइन छोड़ने के बाद ही डेट लिखा गया है। डेट लिखने के बाद अगेन एक फुल लाइन छोड़ा गया है। डेट के बाद एक लाइन छोड़ा गया है। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमारा जो पोस्ट ऑफिसर का पोर्शन है ये देखा जा रहा है। सो पोस्ट मास्टर को हम जब लिखते हैं, इवन सेम वही पोर्शन हमें एक लाइन छोड़ने के बाद हमें पोस्ट ऑफिस का एड्रेस करना है। एड्रेसिंग के बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़ना है। तो कहाँ कहाँ एक लाइन छोड़ना हुआ? डेट के पहले, ठीक है, डेट के बाद, फिर पोस्ट मास्टर के एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, और जो भगवती ट्रेडर्स का नाम था उसके नीचे एक नाम हमने छोड़ा है। सो इस तरीके से ये पोर्शन देखा गया। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में भी इवन एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में देखा गया है। सो इन दिस सेंस कहीं ना कहीं हमें एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में छोड़ना है। वो लिखने के बाद हमें सर इंडिकेट करना है। सर इंडिकेट करने के बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ सारी चीज़ों पे एक लाइन छोड़ना है। रिमेंबर दैट इन अ वेरी वेल मैनर। उसके बाद जो है लेटर का कंटेंट देखा जाएगा। रिस्पेक्टिव सर, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या पैराग्राफ लिखा गया है, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. For years we have received various services of your department, and because of that we are in a position to run our business smoothly. However, in the recent past we have not received outstation post parcel on time. The distribution seems to have become irregular. This has affected our business adversely. Goods are not received in time, which causes delays in taking business-related decisions. We are worried as we do not get very important and necessary documents in time at our address. Irregularity and carelessness of the postal department marred our business reputation and reliability. It is our humble request to you to look into the matter and do the needful promptly. Yours sincerely, विश्वास सोनी पार्टनर. सो यहाँ पे लेटर, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे लेटर इस तरीके से लिखा गया है कि पास्ट फ्यू ईयर्स से, यानी इनकी जो सर्विसेज, जब से बिजनेस शुरू हुआ तब से ही ये लोग वेरियस सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट का लेते आ रहे, और उसी रीज़न के वजह से उनका बिजनेस बहुत ही स्मूथफुली चल रहा है, इनका ये कहना है. फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट में, यानी अभी कुछ दिनों से इनको बाहर से जो पोस्ट और पार्सल आता है वो टाइम पे नहीं मिल पाता. इस रीज़न के वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में एक इरेगुलर चेंज इन्हें देखने को मिल रहा है. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इनका बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि गुड्स इनको टाइम पे नहीं मिल पाता है. इस रीज़न की वजह से इनकी जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है उसमें इनको डिले हो जाता है, और जिस रीज़न के वजह से इनको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर से आने वाला होता है वो टाइम पे नहीं मिल पाता है इनके एड्रेस पे. एज पर दिस इरेगुलरिटी, यानी ये इरेगुलर पोर्शन के वजह से और पोस्टल डिपार्टमेंट के केयरलेसनेस के वजह से कहीं ना कहीं
इनकी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो कम हो रही है और लोग इन पे भरोसा कम कर रहे हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट मैरिड यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकी बिजनेस की रेपुटेशन और भरोसे को खराब कर रहा है। इसीलिए इनका हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए। इवन योर सिंसियरली, जो क्लोजर सैल्यूटेशन है, विश्वास सोनी पार्टनर के रूप में इन्होंने ये लेटर लिखा है। अगेन आई एम गोइंग टू यूज द पोर्शन ऑफ ब्रश ताकि आपको पता चले। सर के बाद एज यूजुअल हमने एक लाइन छोड़ा। यहाँ पे आफ्टर वन पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ के पहले आप लाइन छोड़ सकते हो। अगर आप लाइन छोड़ना ना चाहो तो नेक्स्ट जो पोर्शन में फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ उसी पोर्शन में सेकेंड पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है और उसी तरीके से आपको थर्ड पैराग्राफ भी स्टार्टअप करना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद आपको वो पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, योर सिंसियरली। फिर आपको सबसे पहले साइन करना है। साइन करने के बाद अगर आप देखो तो साइन करने के बाद आपको नाम लिखना है और पार्टनर को इंडिकेट करना है। फिर आपको एज यूजुअल क्या करना है, क्लोजर ऑफ द बॉक्स करना है। तो इस तरीके से प्रॉपरली एक लेटर राइटिंग कंप्लीट होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो फर्स्ट करस्पॉन्डेंस जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ डिटेल में दिखाया गया है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकेंड लेटर, अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट to telephone company to furnish details of outstation call in the telephonic bill। तो यहाँ पे एक लेटर इसलिए लिखा जा रहा है, जैसे मैंने बोला रिक्वेस्ट लेटर है। एक स्कूल जो है रिक्वेस्ट लेटर डाल रहा है कि जितने भी हमारे स्टेट के बाहर वाले कॉल देखे गए, टेलीफोन बिल आप जब हमें देते हो तब आउट स्टेशन यानी हमारे स्टेट के बाहर कितना कॉल गया है उसके बारे में हमें डिटेल दीजिए। बिल में ये बोला गया है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। जागृति शिक्षण संकुल, स्टेशन रोड, मोडासा। phone number, email and again one line leaving 25th August 2017। The circle officer BSNL मोतीपुरा मोडासा। सो जैसे मैंने बोला सबसे पहले बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगाने के बाद जागृत शिक्षण संकुल, इसको मैं ब्रश के थ्रू इंडिकेट नहीं कर रही क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। जागृत शिक्षण संकुल के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो डिटेल लिखना है वो हमें लिख देना है। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमने लिखा। फिर उसका एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर हमें 25 अगस्त डेट मेंशन करना है। डेट के बाद अगेन हमें एक लाइन छोड़ना है और जिसको भेज रहे यानी कि रिसीवर का एड्रेस लिखना है, द सर्कल ऑफिसर BSNL मोतीपुरा मोडासा। उसके बाद अगेन हमें एक लाइन छोड़ना है। फिर सब्जेक्ट regarding the detail of outstation call STD calls in the telephone bill। हमें डिटेल्स चाहिए, जो भी STD कॉल्स ये टेलीफोन बिल के थ्रू देखा गया है उसका डिटेल हमें फर्निश करो। ये बोलने के बाद अगेन एक लाइन छोड़ा गया एंड सर, रिस्पेक्टेड सर और सर ऐसे कर्टसी के साथ लेटर शुरू होता है। सो लेट अस रीड द इन बिटवीन पोर्शन जो कि मेन बॉडी लेटर का माना जाता है। लेट अस रीड दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। We as customers have been benefited with the various services rendered by BSNL Modasa to us and we appreciate it. At present, we have two telephone connection in our complex having telephone number 284 axis and 284 axis. We have got a facility of making outstation calls, STD calls on both these lines. We request you to provide us monthly telephone bill having details of outstation calls from the telephone number. Both numbers are been given up so that we have a record with us. This is a routine requirement for the internal management of Jagruti Shikshan Sankul. We hope you will take quick action on this request. Thanks. Your faithfully मोतीबाई चौधरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। सो यहाँ पे एज अ स्कूल यू नो दैट स्कूल से बहुत सारे STDs कॉल जाते होंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तो दो कनेक्शन है। पर्टिकुलर कौन से कनेक्शन में से कहाँ कॉल गया, यू नो दैट हमें अकाउंटिंग में ये पोर्शन का एक रेफरेंस रखना पड़ता है, जर्नल मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए सब्जेक्ट में लिखा गया है कि जितने भी STD या आउटस्टेशन कॉल देखा गया उसका डिटेल इन्हें चाहिए। अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एज ए कस्टमर इनको टेलीफोन BSNL
मोडासा कंपनी से बहुत सारे बेनिफिटेड सर्विसेज मिले हैं और इवन ये उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। देखो कभी भी आप लेटर लिखो तो सामने वाले को अप्रिशिएट करता हुआ 2 वर्ड्स तो होना चाहिए, तभी वो आपका काम जल्दी करेगा। ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखा गया। इवन आपने प्रीवियस वाला पोस्टल डिपार्टमेंट देखा तो उसमें भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, इसमें भी अप्रिशिएट करते। तो रीडर ओरिएंटेड लेटर होना चाहिए जो आपने 11th में देखा। सो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर वो बोल रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में इनके पास 2 कनेक्शन है उनकी ही कॉम्प्लेक्स में, यानी उनकी जो स्कूल की कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, उसके अंदर 2 कनेक्शन देखा जाता है। टेलीफोन नंबर मेंशन यहाँ पे पूरा नंबर नहीं दिया गया है क्योंकि उसका फिर मिसयूज होता है, बट आप जब पर्सनली लेटर लिखो तब आपको वहाँ पूरा नंबर लिखना पड़ता है। ये हमें सिर्फ एग्जाम्पल दिया इसलिए एक्स डाला है, तो फॉर्मेट में एक्स डाला जा सकता है बट रियल लेटर में आपको नंबर मेंशन करना है। फिर ये लिखते हैं कि इन्हें फैसिलिटी मिला है एसटीडी कॉल्स करने का, आउट स्टेशन कॉल जो एसटीडी कॉल माना जाता है। सो एसटीडी कॉल दोनों नंबर में करने का इनको फैसिलिटी मिला है, इसलिए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मंथली टेलीफोन बिल में एसटीडी कॉल कितना किया गया है वो ये दोनों नंबर में उसका डिटेल इन्हें प्रोवाइड किया जाए। क्यों? एज आई सेड, इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इनको अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितना कॉल कहाँ किया गया है। सो ये एक रूटीन रिक्वायरमेंट, यानी हर जब टेलीफोन बिल आएगा तब उन्हें ये डिटेल चाहिए होगा, क्योंकि इनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है जागृति शिक्षण संकुल, उनको ये इन्हें देना पड़ता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि क्विक एक्शन इस रिक्वेस्ट के ऊपर लिया जाए और इनको ये डिटेल फर्निश किया जाए। फिर इन्होंने थैंक्स लिखा है। फिर योर फेथफुली साइन करते हुए किसने साइन किया? तो मोतीबाई चौधरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के रूप में वहाँ पे जॉब करते। इसका मतलब शॉर्टली इन्होंने ये बोल दिया कि हर महीने इन्हें ये चाहिए, इसलिए आप हर महीने ये प्रोवाइड हमें अपने आप ही कर दो। ठीक है। एज यूजुअल द लेटर फॉर्मेट, एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ, फिर वापस एक लाइन छोड़ के तीसरा पैराग्राफ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि तीनों एक ही लाइन में आ रहा है, तीनों पैराग्राफ की स्टार्टिंग एक ही लाइन पे हो रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे एक लाइन छोड़ के थैंक्स लिखा गया। सो दिस इज एन कर्टसी। हमने देखा है कि लेटर राइटिंग में काफी बार कर्टसी होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कर्टसी इसमें यूज किया। उसके बाद एज यूजुअल एक लाइन छोड़ के योर फेथफुली मोतीबाई चौधरी, फिर उनका नाम और फिर उनका डेजिग्नेशन मेंशन अप करके वो लेटर को क्लोज कर दे रहे। सो यहाँ पे खत्म होता है सेकेंड letter. So let us see the third letter. So students, up till this today we are going to see. So further portion हम next video में देखेंगे. So now let us move on with a short summarization of the portion that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have saw about the introduction of the chapter and the 3 category of the correspondence and the correspondence with the government departments, introduction and 2 letters supporting it as an example in today's portion. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So as per being a human being, it means a common people or a business institution, somewhere we have to do the correspondence with the government department and the public utility center and the we can say that local institution for the development of our business. So for that purpose we must know in which manner we have to do a proper way of correspondence with these portion. So that's why today in this portion we have saw that what is the particular format and how we can do the particular correspondence with these people for developing our business in our day to day life. Various issues को solve करने के लिए हमें ये correspondence करना पड़ता है, जिसमें से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेकंड करस्पॉन्डेंस विद द पब्लिक यूटिलिटी, थर्ड करस्पॉन्डेंस विद द लोकल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आज हमने डिटेल में देखा। सो लेट अस हैव अ शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दैट। कॉमन पीपल हो या कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो, दोनों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाद बहुत सारे वेरियस इशू के लिए करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है। उनकी डे टू डे लाइफ में जो इश्यूज आता है उसको सॉल्व अप करवाने के लिए उन्हें उनके साथ करस्पॉन्ड करना पड़ता है। बट एक प्रॉपर वे ऑफ करस्पॉन्डेंस होता है जिससे उनको प्रॉम्प्ट सर्विस या रिप्लाई तुरंत मिले, वैसा एक लेटर होना चाहिए। तो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमें ये पोर्शन समझाया गया है। एज ए बिजनेसमैन अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन को 5 चीजों के वजह से फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ फ्रीक्वेंटली करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है पोस्टल एंड पार्सल सर्विसेज, सेकेंड है टेलीफोन
फैसिलिटी। थर्ड है, उसके बाद हम देखें पोस्टल और टेलीफोन के बाद थर्ड है उनको कहीं ना कहीं जो है रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी रखना पड़ता है। सेल्स एंड जो इनकम टैक्स है उसके रिलेटेड रखना पड़ता है। कस्टम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली उनको करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है। सो उसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल आज हमने डिटेल में देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इट वॉज एन लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द पोस्टल एंड पार्सल डिपार्टमेंट फ्रॉम अ कंपनी नेम्ड और ट्रेडर नेम भगवती ट्रेडर्स। तो भगवती ट्रेडर ने कंप्लेन किया है पोस्टल डिपार्टमेंट को कि उनको जो पार्सल्स आने चाहिए वो कहीं ना कहीं इरेगुलर आता है। उस रीजन की वजह से उनकी बिजनेस की रेपुटेशन को और उनकी रिलायबिलिटी यानी विश्वास जो लोगों के बीच है वो कम होता जा रहा है। इसीलिए उनकी सर्विसेज को प्रॉम्प्टली और उसमें ध्यान देके उसको टाइम टू टाइम पहुंचाया जाए, इसका ध्यान खींचते हुए भगवती ट्रेडर्स ने एक लेटर लिखा। सो इस लेटर की फॉर्मेट को अगर हम देखें एज यूजुअल जो हमने बैंक करस्पॉन्डेंस देखा उसी के जैसे प्रोबेबली है। बॉक्स स्टार्टअप करता है इन बिटवीन कंपनी का नेम या जो भी बिजनेस फर्म है उसका नेम, लेफ्ट साइड राइट साइड नंबर, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, फिर इनका सेंडर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना है। अगेन वी हैव टू लीव वन लाइन, फिर जो रिसीवर का एड्रेस है वो मेंशन करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉर्मल लेटर माना जाता है और इवन ये फॉर्मल लेटर है। सो सब्जेक्ट लिखना है जिसमें शॉर्ट में हमें किस रीजन की वजह से हम लेटर लिख रहे हैं वो बताना है। सब्जेक्ट के बाद अगर हमें वापस एक लाइन छोड़ना है, फिर सर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी में जो पैराग्राफ है उसकी जो मार्जिन लाइन है तीनों बॉडी का इक्वल होना चाहिए पैराग्राफ का, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ते हुए क्लोजर सैल्यूटेशन करना है। उसके बाद सिग्नेचर, जो पर्सन नाम लिख रहा है उस बिजनेस फर्म के रिगार्डिंग उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन उस कंपनी में देखा जाता है। फिर उस बॉक्स को हमें क्लोज करना है। इस तरीके से फॉर्मेट से हमें ये लेटर लिखना है। इवन इस लेटर में हमने ये सीखा कि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट या रिक्वेस्ट लेटर लिखते तब हमें उसको सबसे पहले अप्रिशिएट करना पड़ता है कि उनका सर्विसेज हमें काफी सालों से अच्छी तरीके से मिल रहा है और हम उसको अप्रिशिएट भी करते, फिर भी अभी कुछ दिनों से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हमारा लेटर होना चाहिए। इवन नेक्स्ट लेटर हमने जो देखा उस पोर्शन में टेलीफोनिक बिल में भी हमने यही देखा। रिक्वेस्ट लेटर था बट वो एक स्कूल के थ्रू दिखा गया था, सेम फॉरवर्ड जो है फॉलो अप किया था। उसमें भी इवन उस स्कूल ने ऐसे ही मेंशन किया कि काफी सालों से उनको उनका टेलीफोन का फैसिलिटी मिल रहा है, बट इस बार अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, तो एसटीडी बिल्स जो है टेलीफोनिक बिल आता है उसमें उसका डिटेल्स इनको मेंशन अप हुआ चाहिए। उनकी एचआर रिसोर्सेज के रिलेटेड और इंटरनल मैनेजमेंट में उसका प्रूफ रखना नेसेसरी है, इसलिए उनको चाहिए। इस तरीके से हमें उनको अप्रिशिएट करके हमारा रिक्वेस्ट या कंप्लेंट लिखना है। और रेदर देन दैट हमने ये देखा, हमें यहाँ पे एग्जांपल में जो टेलीफोन नंबर दिया गया था उसमें लास्ट नंबर XXX लिखा गया था, बट हम जब रियल में लेटर लिखेंगे तब हमें हमारा पूरा लेटर का नंबर यानी फोन नंबर का नंबर उस लेटर में लिखना है। इस तरीके से हमने देखा। इवन यहाँ पे हमने सेकेंड लेटर में एक अलग एक्स्ट्रा चीज देखा, जैसे लास्ट में लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ होता है, वी एक्सेप्ट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, उसके बाद एक थैंक्स लिखा गया जो एक कटसी माना जाता है। एक इफेक्टिव लेटर में कटसी होना चाहिए, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में देखा था। सो उस कटसी को हमें यहाँ पे यूज अप करना है। फिर एक लाइन छोड़ के एज यूजुअल क्लोजर, फिर हमारा सिग्नेचर, हमारा नाम और डेजिग्नेशन के साथ ये लेटर कंप्लीट होता है। सो यहाँ तक का पोर्शन डिटेल में आज हमने देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.